डियर स्टूडेंट्स, आज हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे हमारा फोर्थ यूनिट। हमारा फोर्थ यूनिट जो है ये हम आज स्टार्ट करेंगे 11th आर्ट्स के लिए। इसका नाम है एग्जीक्यूटिव 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 इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम। Executive in a parliamentary. Dear, dear students, it's our fourth unit. Executive in a parliamentary system. It is our fourth unit, namely executive in a parliamentary system. In this unit, we will start what is executive. Before going start, again I will repeat here. There are three organs of the government. There are three organs of the government. There are three organs of the government. Number one, legislature. Number second, executive. And number third, judiciary. There are three organs of the government, namely legislature, executive and judiciary. So what is legislature? It is a law making organ or agency. Law making agency. It is made up of parliament, which means Lok Sabha and Rajya Sabha, plus President of India. Legislature is the first organ. There are three organs of the government, namely legislature, executive and judiciary. And in this portion, legislature means law making agency. It is made up of president. It's made up of Lok Sabha, Rajya Sabha and the President of India. Its duty is to make the law for the whole country. And number second is law making agency, लोक सभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो इनका काम क्या है? लेजिस्लेचर का लॉ मेकिंग, कानून बनाना. और एग्जीक्यूटिव इसमें क्या क्या आएंगे? प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इनका काम है कानून बनाना. एग्जीक्यूटिव लॉ इनफोर्सिंग एजेंसी. It is made up of president and prime minister. And number third is judiciary, law interpreting agency. Law interpreting agency. It is made up of Supreme Court, High Courts, lower courts and district and sessions courts. So dear students, आपको यहाँ पे ये बात पता चली कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. आगे देखिए आप बोर्ड की तरफ. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीन ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के. और लेजिस्लेचर का काम है लॉ मेकिंग ऑर्गन, इसका काम है लॉ बनाना. एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ इन्फोर्स कराना.
जुडिशरी का काम है लॉ इंटरप्रेट कराना। दोबारा से उर्दू में मैं आपको समझाऊंगा। तीन ऑर्गन्स हैं, नेमली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या है? कानून बनाना। लेजिस्लेचर का पार्ट कौन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एग्जीक्यूटिव जो है ये लॉ को इन्फोर्स करते हैं, इसमें है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। और जुडिशरी क्या है? लॉ इंटरप्रेटिंग एजेंसी, कानून को ट्रांसलेट करना। ये किनका काम है? सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट्स का, लोअर कोर्ट्स का एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट्स का काम ये है। अब हम आगे थोड़ा सा जाएंगे, हम अपने एक्चुअल यूनिट की तरफ आएंगे, एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ आएंगे। ये मैंने क्यों बोला आपको? बिकॉज द हिस्ट्री ऑफ आवर क्वेश्चन लाइज इन दीज पॉइंट्स। द हिस्ट्री ऑफ आवर क्वेश्चन लाइज इन दीज पॉइंट्स। सो व्हाट इज एग्जीक्यूटिव? Political, there are टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। ये आज हमारा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, dear students, there are two types of executives. There are two types of executives, namely political and permanent executive. Political and permanent. Political and permanent. Political and permanent executive. Political and permanent executive. There are two types of executives in India, namely political executive and permanent executive. Dear students, what is political executive? During my lectures at on ePlanet Academy, I have several times repeated this thing that there are two types of executives, namely political executive and permanent executive. Again, I will repeat here. Political executive is President of India. President of India is a political executive. We can also use the name of nominal executive. हम क्या बोल सकते हैं? इस क्या है को बेवनियत इस वना कोशिश पोटी जी गैस के इस ज्यादातर स्टूडेंट्स कोशिश पोटी ये लेक्चर वेसन बोजन इस वुचान गोबरो के 10 किस्म एग्जीक्यूटिव छ एस निश पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो युस इस वुचान छ गडनते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एमस इज ब्याक नाम वना नो ये हश एवं मान पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। एमस इज ब्याक नाम वना नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। सो यहाँ पे क्या बोलेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और nominal executive. President of India or nominal executive and or titular executive or titular executive. कितने नाम है आईन में? आईन में लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम बोलेंगे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और ये जो है इसको हम नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी बोलेंगे, इसको हम टाइटुलर एग्जीक्यूटिव भी बोलेंगे। बिकॉज इसका काम क्या है? खाली बिल्स को साइन करना। ये ओनली ज्यादा से ज्यादा जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं, क्योंकि लोकसभा में हम जब देखते हैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को हम कैसे डिफरेंस करते हैं। एक दफा क्या हुआ, मेरी क्लास में एक स्टूडेंट आई, मैं आपको एक बात यहाँ पे भी दोहराना चाहूंगा। उसने मुझे बोला कि मैं एक लेक्चरर से पढ़ती हूँ पॉलिटिकल साइंस स्कूल में, गर्ल्स हायर सेकेंडरी कुपवारा में। तो उसने मुझे बोला मैं वहाँ पढ़ती थी। फिर ये बहुत साल पहले की बात है, मुझे लगता है 6 साल पहले की बात वो मुझे मिली। उसने मुझे बोला कि मेरा जो टीचर है उसने मुझे बोला प्रेसिडेंट ज्यादा पावरफुल। मैंने उसको बोला कैसे? देखो प्रेसिडेंट ज्यादा पावरफुल कभी नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट का काम है तब
जब इमरजेंसी लागू हो जाएगी, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर, अदरवाइज पार्लियामेंट में लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी कौन है? प्राइम मिनिस्टर, तो वही पावरफुल है। दैट मीन्स प्रेसिडेंट को हम क्या, हमारे पास कितने एग्जीक्यूटिव हैं? पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव किसको बोलेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नोन एज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और टाइटुलर एग्जीक्यूटिव who reigns but not rules. There is a proverb in political science that he reigns but not rules. He reigns but not rules. प्रेसिडेंट क्या करता है? खाली चेयर पे बैठता है, रूल नहीं करता। रूल कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने आप देखेंगे अब अगला वाला पॉइंट है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, पीई, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। हु इज परमानेंट एग्जीक्यूटिव? ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली कौन है ये? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया is known as the permanent executive or real executive, as well as the real ruler, as well as the real ruler। ये real ruler किसको बोलते हैं? तो आगे हमारे पास आ गए, अब हमारे पास दो टाइप्स के एग्जीक्यूटिव्स, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। हमें पता चला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या मानते हैं? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, टाइटुलर एग्जीक्यूटिव एंड इसके बाद परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नोन एज परमानेंट एग्जीक्यूटिव और रियल रूलर। हुआ यहां तक क्लियर? आगे अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन, ये वाला इसी का पार्ट है, डिफरेंस बिटवीन द प्रेसिडेंशियल। ये एग्जाम में आ सकता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी, या बड़ा भी आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट्री form of the government. Now we are going to differentiate between the presidential form of the government and the parliamentary form of the government. Difference between the presidential form of the government and the parliamentary form of the government. Number 1, in presidential form of the government, President is known as the head. In presidential form of the government, President is, ये पहला पॉइंट है, लिख के रखिए आप, is known as the head of the state और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। दूसरा नाम क्या है इसका? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। देखो कितने नाम मैंने आपको बोले, टाइटुलर हेड, नॉमिनल हेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। दैट मीन्स we are going to difference between the presidential form of the government and the parliamentary form of the government। आगे देखिए आप, in number 1, difference between the presidential form of the government and the parliamentary form of government. In presidential form of the government, president is known as the head of the state or constitutional head.
So where the presidential form of the government lies? Where the presidential form of the government lies? Example आप दीजिए United States of America and Brazil. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ब्राजील, यहाँ पे क्या होता है, यूएसए का प्रेसिडेंट भी पावरफुल है और ब्राजील का प्रेसिडेंट भी पावरफुल है। यहाँ पे ज्यादा पावरफुल गवर्नमेंट होती है, यहाँ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट जो होती है, यहाँ की गवर्नमेंट का हेड कौन माना जाता है, प्रेसिडेंट। सो इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट इज नोन एज द हेड ऑफ स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, कामा इसी के साथ while as in the parliamentary form PF of the government, while as in the parliamentary form of the government, the prime minister is known as the head. The prime minister is known as the head of the country. Head of the country. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंडिया लिखिए, आप मिसाल दीजिए इंडिया की, ब्रिटेन की और कामा जर्मनी की या ऑस्ट्रेलिया, या that means in presidential form of the government the president is known as the head of the state or constitutional head, while as in the parliamentary form of the government the head of the state is known as the prime minister. Where prime minister, where the parliamentary form of the government sustains, it sustains in India, it sustains in Britain, it sustains in Germany, it sustains in Australia. These are the examples in front of you. Again I will repeat here. Look towards board and write down the important points. Difference between the presidential form of the government and the parliamentary form of the government. Our point number 1 is, in presidential form of the government, the president is known as the head of the state or constitutional head. तो कहाँ कहाँ पे है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वर्ल्ड में? यूएसए में और ब्राजील में। एग्जांपल आपके सामने यूएसए एंड ब्राजील। और while as in the president, whereas in the parliamentary form of the government the prime minister is known as the head of the country. इसके लिए आप एग्जांपल्स प्रोवाइड कीजिए, इंडिया, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। अब दूसरा पॉइंट, the office of the president, the office of the presidential form of the government is based on the concept of the separation of the powers, is based on the concept of the separation of the powers. तो ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म को जो हम देखते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या होता है, इसमें क्लियरली पावर्स डिवाइड होते हैं बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। सो while as in the parliamentary form of the government,
power gets divided. So while as in the parliamentary forum the government power gets not divided properly, so the office, अब हमारा second point जो है difference का, the office of the presidential form of the government is based on the concept of the separation of the powers. The concept of the separation of the powers has been given by Dr. Montesquieu. एंड डॉक्टर मोंटेस्क्यू ने क्या बोला था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के पावर को डिवाइड कीजिए. तो हमें पता चला प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर्स डिवाइड होते हैं, while as in the parliamentary form of the government power gets not divided properly. आगे और एक पॉइंट, in the parliamentary forum of the government, executive is responsible before executive is and not responsible. Executive is accountable before the parliament. In the parliamentary forum of the government, executive is accountable before the parliament, while as in the presidential system no accountability lies. Dear students, I think it is sufficient for today, and tomorrow we will discuss the powers of the President of India. ये हमारा चौथा यूनिट है. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. सब्सक्राइब, इस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, बेल आइकन दबाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.